یہ معجزہ اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے تھا، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائی۔ کون ہے جو ہماری ان مضبوط پتھروں کی عمارتوں کو تباہ کرے؟ کون تباہ کر سکتا ہے ان پتھر کے گھروں کو؟ عاد کی قوم تو بے وقوف تھی جو ریت پر بھروسہ کرتی تھی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے اس قوم کے بارے میں جس نے اپنی آنکھوں سے پچھلی قوم کی تباہی کے قصے سنے تھے؟ مگر پھر بھی وہی غلطی دہرائی۔ وہ لوگ جو کھلے میدانوں میں نہیں بلکہ سیاہ سخت چٹانوں کا سینہ چیر کر اس کے اندر عالی شان محل بناتے تھے، جو اپنی محفل میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور کہتے تھے ہمیں کون مٹا سکتا ہے۔ عاد کی قوم بے وقوف تھی جو ریت پر بھروسہ کرتی تھی۔ وہ قوم تو پاگل تھی۔ ہاں، پتھر کے گھروں کو ہوا کیسے تباہ کرے گی؟ طوفان خیمے اڑا سکتا ہے، پتھر کے گھر نہیں۔ ہم نے تو پہاڑوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، آندھیاں خیمے اڑا سکتی ہیں، پہاڑ نہیں۔ مگر جب آسمان والے کا فیصلہ آیا تو نہ ان کے پتھر کے قلعے کام آئے اور نہ ان کی فولادی طاقت۔ ایک ایسی چیخ، جی ہاں، صرف ایک تیز آواز نے ان کے جگر پھاڑ کر رکھ دیے اور وہ اپنے ہی محفوظ گھروں میں ایسے اوندھے منہ گرے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی بدقسمت قوم سمود کی۔ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں قوم عاد کی داستان ختم ہوتی ہے۔ The storm is here. Get inside quickly. Help me with the camels. ذرا تصور کریں ان چند مٹھی بھر لوگوں کا جو عاد کی تباہی سے بچ نکلے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوفناک آندھی اور موت کا منظر ابھی تک تازہ تھا۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی سرکشی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ تپتے ہوئے صحراؤں کا سفر کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا۔ یہ لوگ اب ایک نیا شہر بسانے جا رہے ہیں جہاں یہ زندگی کی نئی شروعات کریں گے، اور اب یہ ان پہاڑوں کو تراش رہے ہیں اور یہاں نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ اب ہم یہاں رہیں گے، ہاں، اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہاں، اب یہی ہمارا گھر ہے۔ یہ تھی وادی حجر جسے آج ہم مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ وادی خشک پہاڑوں کے درمیان ایک جنت تھی۔ یہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے، کھجوروں کے گھنے باغات تھے اور زندگی کا ہر سامان موجود تھا۔ اللہ نے اس نئی قوم کو جسے سمود کہا گیا ایک خاص قسم کا ہنر عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا۔ یہ لوگ فن تعمیر کے جادوگر تھے۔ جب ان کا کاریگر چھینی اور ہتھوڑا لے کر کسی پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوتا تو سخت کالا ترین پتھر بھی ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا۔ انہوں نے میدانوں میں اینٹیں جوڑ کر گھر نہیں بنائے بلکہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر چٹانوں کے اندر ایسے ہوش ربا محل تراشے جن کے ستون اور نقش و نگار آج ہزاروں سال کے بعد بھی دنیا کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شروع میں تو یہ لوگ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور ان کی نسلیں بڑھتی رہیں، دولت اور طاقت نے ان کے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ بھول گئے کہ یہ ہنر اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ ان کا اپنا کمال ہے۔ ان کی محفلیں بدل گئیں۔ اب وہاں شکر کے بجائے غرور کے قہقہے گونجتے رہے۔ کون ہے جو ہماری ان مضبوط پتھروں کی عمارتوں کو تباہ کرے؟
कौन तबाह कर सकता है इन पत्थर के घरों को? आद की कौम तो बेवकूफ थी जो रेत पर भरोसा करती थी। वो कौम तो पागल थी। हाँ, पत्थर के घरों को हवा कैसे तबाह करेगी? उनके खूबसूरत पथरीले महलों में अब गरीबों की चीखें सुनाई देने लगी। हमें कुछ खाने को दे दो, हम महीनों से भूखे हैं। जो ताकत कमजोरों की हिफाजत के लिए थी वही जुल्म का हथियार बन गई। वो पहाड़ों को देखकर अकड़ कर कहते, हमें मौत कैसे आ सकती है? हमारे घर तो पहाड़ों के अंदर है, यहाँ ना तो आंधी आ सकती है और ना ही सैलाब। यही वो एहसास बरतरी था जिसने उन्हें अपने ही हाथों के तराशे हुए पत्थरों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और वो शिर्क के अंधेरों में डूब कर रह गए। फिर उसी अंधेरे में अल्लाह ने इन्हीं के भाई बंदों में से एक मौसिस और सुलझे हुए शख्स हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। जब हजरत सालेह ने उन्हें समझाया कि ऐ मेरी कौम, इन पत्थरों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तो कौम का रवैया बदल गया। वो सरदार जो कल तक उनकी इज्जत किया करते थे अब तंज करने लगे। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें थीं और तुम तो हमें हमारे बाप दादा के मजहब से रोक रहे हो। और फिर उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को लाजवाब करने के लिए एक नामुमकिन शर्त रख दी। लेकिन सरकशी की हद यह थी कि वो हक को मानने के बजाय बहाने तराशते थे। फिर वो फैसला कुन दिन भी आ गया जब समूद के तमाम बड़े सरदार अपनी एक ईद के मेले में जमा थे। खेल लिया और एक ऐसा मुतालबा कर दिया जो इंसानी अक्ल के लिए नामुमकिन था। उन्होंने वादी के कोने में खड़ी एक देव हेकल, तन्हा और इंतहाई सख्त सियाह चट्टान की तरफ इशारा किया जिसे कासिबा कहा जाता है। वो हंसते हुए बोले, ऐ सालेह, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो अभी इसी वक्त इस बेजान खुश्क पत्थर के अंदर से एक जिंदा 10 माह की हामिला ऊँटनी निकाल कर दिखाओ जो निकलते ही बच्चा भी जन्म दे। जरा उस मंजर को तस्वुर कीजिए। एक तरफ पूरी कौम का हुजूम जो मजाक उड़ा रहा था और दूसरी तरफ तन्हा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। ये जिंदगी और मौत का सवाल था। पत्थर से गोश्त पोस्ट का जानवर, ये कैसे मुमकिन था? लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम का भरोसा अपने रब पर पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने कौम से पक्का वादा लिया कि अगर मेरा रब ये कर दिखाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब ने शोर मचाकर कहा, हाँ, हम वादा करते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज की नीयत बांधी। फजा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कांपते हाथों और भीगी निगाहों से आसमान की जानिब देखा। अभी दुआ के अल्फाज होठों से अदा ही हुए थे कि अचानक जमीन के कलेजे में से एक थरथराहट पैदा हुई। वो सियाह सख्त चट्टान जो सदियों से खामोश खड़ी थी एक जिंदा जिस्म की तरह कांपने लगी। लोग दहशत के मारे पीछे हट गए। फिर सबने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था, न इसके बाद कोई देखेगा। एक जोरदार आवाज के साथ चट्टान का सीना फटा, लेकिन उसमें से लावा नहीं निकला बल्कि एक जीती जागती सांस लेती अजीमो शान ऊँटनी बरामद हुई। उसके नथनों से निकलती गर्म सांसें पत्थर की ठंडक को चीर रही थीं। निकलते ही उसने अपने खालिक के हुक्म से एक बच्चा भी जन्म दिया। ये कोई जादू नहीं था, ये खालिस कुदरत इलाही थी। वो ऊँटनी जब अपने बच्चे को प्यार करने लगी तो पत्थर दिल इंसान भी हैरत से दंग रह गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह तो खुला मौजज़ा है। लेकिन अफसोस, आंखों ने तो देख लिया था मगर बदबख्त दिल अब भी अंधे थे। मगर अफसोस, इंसान का दिल जब काला हो जाए तो उसे मौजज़ा भी जादू लगता है। मगर सरदारों और फसादियों ने साजिश रची। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक जानवर के लिए पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। फिर एक मनहूस रात कौम के सबसे बदबख्त शख्स कद्दार बिन सालिफ ने अपनी तलवार उठाई और उस अल्लाह की निशानी को बेदर्दी से ज़िबाह कर दिया। उन्होंने सिर्फ ऊँटनी को नहीं मारा बल्कि अपनी तबाही को भी आवाज दे दी। अगली सुबह वो बड़े फख्र के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने आया और बोला, हमने तेरी ऊँटनी मार दी
अब ले आ वो अजाब जिससे तू हमें डराता था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, यह आखिरी मोहलत है। और फिर उल्टी गिनती शुरू हुई। सबसे पहले सबके चेहरे जर्द हुए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह। खौफ ने उनके दिलों को जकड़ कर रख दिया। वो अपने मजबूत पहाड़ी महलों में दुबक कर बैठ गए। चौथे दिन की सुबह जब सूरज निकला तो आसमान से एक ऐसी चिंगाड़ और हौलनाक आवाज आई जिसने कायनात को हिला कर रख दिया। साथ ही जमीन ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। और जो वो कहते थे हमें पहाड़ बचा लेंगे, वो अपने ही घरों में घुटनों के बल ऐसे गिरे कि उनकी रूहें जिस्मों से परवास कर गईं। एक लम्हे पहले वो बादशाह थे और अगले ही लम्हे वो राख का ढेर बन चुके थे। जब अजाब थम गया तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। आज भी मदाइन सालेह के वो तराशे हुए पहाड़ मौजूद हैं, मगर वो खाली है। ये खंडरात आज भी गवाही देते हैं कि टेक्नोलॉजी और इमारतें इंसान को बचा नहीं सकती। इज्जत सिर्फ अल्लाह की अताअत में है। दोस्तों, कौम समूद का ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हम भी अपनी नेमतों पर गुरूर तो नहीं कर रहे। आपके ख्याल में उस कौम की सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कुरान की ये सच्ची दास्तान पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आप किस कौम की कहानी देखना चाहेंगे हमें कमेंट में लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।